गुड मॉर्निंग ऑल। कोई बता सकता है कि यार ये जो लेक्चर है उसका डाउनलोड कैसे करना है? कल बताया था सर ने, लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो किसी को आइडिया है इस बारे में? अरे उसको ना कंप्यूटर पे जो फाइल्स ऑप्शन आएगा ना, फाइल्स मतलब फेज 1 सितंबर बैच ऐसा करके लिख के आएगा। उस पे आके ना फिर फाइल में जाना, दिख जाएगा तुमको वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन। तो मतलब वीडियो तुमको दिखाई देगी टीम्स ना, में वो लेफ्ट वीडियो हैंड दिखाई साइड में देगी। ना एक्टिविटी चैट और टीम्स के नीचे फाइल हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन। जब वो मेन स्क्रीन ओपन करोगे ना तो फोर्थ ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लो, उसमें मिल जाएगा। ओके ओके, नहीं सामने तो वहाँ जैसे पे सामने सामने उनकी वो आ रही है डॉट ना। वगैरह उसको क्लिक करना, डाउनलोड करना है। Yes, dear. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग morning. सर। Good morning, Vijay. सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। Sir, how are you, dear? How are you, all of you? Good. यस सर, गुड। ओके सर। Yeah, we'll be starting with the draft survey today. I hope still few people are not yet joined. 34 I can see here. चलो तब तक आ जाएंगे. So I hope all of you have no net problem, no link problem. So whosoever has joined, I think you are comfortable, but sometime net is weak, you are not able to join. तो उसका बच्चे थोड़ा ख्याल कर लीजिए जो नए वाले हैं, that your net working, speed, everything is okay so that you can join. Yeah. So I think these people who are on bulk carriers, who have worked on bulk carriers, I think they are very much. So the guys who are working on bulk carriers, I think they are quite used to this system. What is draft survey? आपके नॉर्मल मन में क्या आता है कि when we talk about draft survey क्या चीज़ है, क्यों किया जाता है? Anybody? वेरी सिंपल वे में आपके मन में क्या आता है, यार ये ड्राफ्ट सर्वे है, होता क्या है, पर्पस क्या है? Sir, to know the how much cargo quantity is loaded. Okay, so that means for cargo purposes. Anything else? Sir, to match with our system, it is matching with the lubricator and all this stuff we can also say. Okay. तो ये है कि ड्राफ्ट जो हमारे अलाउड होते हैं लोड लाइन जोन्स के हिसाब से, वो कंप्लाई करता है कि नहीं करता है। मतलब सबमर्ज तो नहीं हो गया कोई लोड लाइन। ओके, सो लोड लाइन के लिए बेसिकली ऑफ कोर्स हमारे पास लोड लाइन मार्क्स दिए हुए हैं, प्लिमसोल मार्क इज देयर, एंड second way of calculating that you are not exceeding, yes, that how much cargo you have loaded, that you go as per your drafts, whatever permitted drafts are there. So anyway, so one way the draft survey is that how to know how much cargo is on board. So first priority we see, like most of the ships, if you see, if you have cargo ships, containers, we know when we are loading, we have the weighted cargo. So cargo's weight is known to us, so we know this much cargo we are loading. Tankers,
We take ullages, we can calculate the volume, we can calculate the weight. अब bulk cargoes में when we are loading this cargoes with the conveyor belt, तो कितना cargo आया that accuracy के साथ it becomes difficult to estimate or calculate. So one purpose of draft survey is yes, how much cargo you loaded, how much you discharged. Principle क्या है इसका पीछे? What principle is used? जो हमें बताता है how much cargo is loaded and how much cargo is discharged. Parsimony principle. Sir, initial displacement minus the final displacement, sir. Okay. और जो फ्यूल जो मतलब बर्न हुआ है या फिर ब्लास्ट वाला बर्न जो किया उसको माइनस कर देंगे. Yeah, that is okay. That is the procedure what we do. The principle behind your draft survey is a very simple one. A draft survey is a commercially acceptable form of weighing that is based on Archimedes principle, which states a floating ship displaces the amount of water equal to its own weight. So from there we can calculate. Now we go to the drafts, we have the particulars, and according to the hydrostatic draft you can calculate what vessel is displacing, what's the displacement at any time. So in a simple way, briefly, the weight of the ship is determined both before and after loading, and allowance is made for differences in ballast, water, other changeable items. And the difference between these two weights is the weight of the cargo. So this is, in a very simple term, it is based that here we know the amount of water displaced is equal to the weight of the ship. So this is the principle used, and in a very simple way, or more we say simple कीजिए, you must have seen this weigh bridge. So this truck is passing over the weigh bridge. So when you pass the empty truck, you know the weight, and when you pass the loaded truck, so you can come to know how much cargo it is carrying. धर्म काटा. Very right. देसी भाषा में धर्म काटा. So this is one way of determining the weight of the cargo on the truck. Draft surveys are made in order to determine quantity of cargo loaded, carried and discharged. And this is done by measuring the vessel's draft and calculating its displacement. अभी लगता तो बहुत सिंपल है कि ठीक है यार ड्राफ्ट्स है, स्टेबिलिटी पर्टिकुलर्स खोलिए, उसमें से डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए. Now prior loading a cargo and after loading this cargo, taking variables जैसे आपने कहा, so we can calculate how much vessel is loaded. अब इसकी accuracy जो है, in order to obtain a reasonable accuracy in this draft survey calculation, corrections to draft readings and its initial corresponding stability values and parameters must be made. अब वहाँ पे आपकी accuracy है कि yes, now surveyors also are there, prior loading, after loading, that how much you loaded, how much you discharged, and it is proven that up to 0.5%, 0.5% इसकी error है, and it is commercially acceptable कि चलो this much error is allowed, so you come to know how much cargo is loaded. अब आपका ड्राफ्ट्स आ गया कि ना इट इज डिपेंडेंट ऑन द ड्राफ्ट्स, यार हम ड्राफ्ट्स के ऊपर ही हमने कैलकुलेशन करनी है. सो देयर आर टू ड्राफ्ट्स फॉर अ वेसल. वन draft at forward and aft perpendiculars and midship of these two, and this is the draft which is listed in your ship's trim and stability booklet, जिसके अंदर आपके सारी calculations हैं, they are based on the drafts which are at perpendiculars. But actually if you see the draft marks which are painted on the ship, they are not at the perpendiculars. So first thing comes, to get the displacement from the trim and stability booklet, we must get the drafts at the perpendiculars. So सबसे पहले तो ये correction आ जाती है. A lot of stability booklets you see, they calculate this correction and they give you this correction by way of tables. But exam में तो हमें table नहीं मिलेंगे, so we have to calculate that how do we calculate this drafts at perpendiculars from the drafts which are marked on the ship side. So the ship's hydrostatic data including her displacement scale are provided for drafts measured at
forward and aft perpendiculars at a design trim with no hog or sag. Now this is, you must remember that whatever data is given, it is given for drafts at perpendiculars with no hog sag. Now since forward and aft drafts may not be at perpendiculars, and similarly the midship marks may not be at the midpoint of the length between perpendiculars, so observed drafts we have to be corrected to obtain the drafts at perpendiculars. So आपकी सबसे पहली first correction तो यही आ जाती है, and it's very simple. So it is necessary to correct these drafts to the true draft at perpendiculars, and this can be achieved either what I told you by calculation or by draft correction tables. Now if you see, if this is the ship and this is your water line, so in this trimmed condition, if you see these dotted lines, these are your draft marks which are painted on the ship side, and these solid lines, these are the forward perpendicular, aft perpendicular, and the midpoint. Now by looking at this figure, you can make out that this is a forward draft which I am reading on the draft marks. But if you see the draft at the perpendicular at this point, definitely less than this draft. And similarly, if I go to aft perpendicular, now this is the draft I am reading on the draft marks, but the draft at the aft perpendicular is more, it is here, whereas the draft at the draft mark is less because she is trimmed by stern. So aft perpendicular is aft of the draft marks, then the draft is basically more. Similarly forward case में क्या था, the draft at the draft mark is basically here, and if I have to go forward, she is trimmed by stern, the more forward the draft is less. अब ये जो छोटी सी आपको correction दिख रही, this correction, similarly midship में this correction and this small correction in the small triangle, this is what we have to calculate, and we apply this correction. And everyone knows the distance between the perpendiculars, what we call LBP, and there is something called distance between the marks, distance between the draft marks, forward and aft marks. If I know the length between the perpendiculars, of course in the particulars, and if I know, or it's given in the question that your draft marks are so many meters, 2 meters, 3 meters aft of the forward perpendicular or forward of the aft perpendicular, I have written here B by B meters, or midship marks are so many meter forward of the midpoint. So if we know these distances, how many meters your draft marks are displaced from the perpendiculars, then I can calculate the distance between forward and aft marks also. Can we calculate the distance between the draft marks if I know the LBP and the distance between how much the draft marks are displaced? हाँ सर, correction लगाने के बाद corrected draft distance निकाल Yes, लेंगे. sir. Yeah, simple. If my LBP is 200 and I know forward draft marks are say 2 meter aft of the forward perpendicular, and your aft draft marks are 3 meter forward of the aft perpendicular. So here distance 3 meter and this distance is 2 meter. So this is the total LBP. So LBP minus this 3 and minus 2. That means LBP में से 5 meter में minus करूँ, so I will get the distance between the draft marks. Isn't it? Understood or no? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so this is simple. LBP is given, draft marks displacement is given, how many meters? So I can calculate the distance between the draft marks, what we call the length between the marks. अभी आपकी equation simple बन जाती है. Let's see, A is the distance between the forward marks and the forward perpendicular, B is the distance between aft draft marks and aft perpendicular, C is the distance. So इसको calculate करने के लिए the correction, the forward correction which is to be applied to the draft marks, it is in a very simple way. If you see the apparent trim, divide by LBM,
that is the length between the marks into whatever distance the draft mark is displaced from the perpendicular. So just remember, apparent trim, of course we know whatever the vessel has got a trim which I can read from the draft marks. Suppose she has got a 2 meter trim, so 2 meter divided by LBM जितना भी मैंने कैलकुलेट किया मे बी से 180 मीटर्स और 2 meters divided by LBM into forward perpendicular or the forward draft marks are 2 meters of the forward perpendicular into 2. हर केस में हो जाएगा. सो apparent trim upon LBM सेम रहेगा, खाली ये डिस्टेंस चेंज होता चला जाएगा. आपके पास फॉरवर्ड करेक्शन आ गई, आफ्ट करेक्शन आ गई, मिडशिप करेक्शन आ गई. सो फर्स्ट थिंग इज टू ऑब्जर्व correction to observed drafts. From observed drafts to come to the drafts at perpendicular, apparent trim divided by LBM into the distance of that particular draft mark is from the perpendicular. अब ये तो आसान है. अब इसका साइन क्या होगा, whether it is to be added or it is to be subtracted. अब this sketch is very simple. This is the best way that to calculate whether the correction to be added or to be subtracted. Now if you make this sketch and if you know आपने बना लिया, in this case the forward perpendicular is forward of the draft marks, or rather say it is given your draft marks are aft of the perpendicular, draft marks are forward of the perpendicular. And if I look at it here, मेरे को ये draft पता है and I want to come to this draft, and from the sketch only I can make out when she is trimmed by stern, या forward perpendicular में which is forward of the draft marks, draft कम होगा, correction to be subtracted. इस draft में से suppose ये मेरा draft 8 meters था, correction मेरी 0.02 या 0.002 meters आई है. so 8 minus 0.002 that means 7 point something ये draft यहाँ पे होगा. aft में correction मैंने निकाल ली, से again trim upon LBM into this distance B, जितने मीटर था वो करेक्शन आ जाती है 0.004 meters. I know the draft at draft marks say 9 meters. So 9 पीछे की तरफ जा रहा हूं मैं, because my perpendicular is aft of the draft marks. करेक्शन को मैं ऐड कर दूंगा because जैसे जैसे पीछे जाएंगे stern trim में draft increase होता जाएगा, and if I go forward from the draft marks, draft कम होता जाएगा. Similarly, midpoint also you can make out same way. The draft marks are forward. मेरे को draft marks चाहिए midpoint पे which is aft of the draft marks. तो जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ correction will be added. So sketch से ना तो आप error कर सकते हो, ये प्लस माइनस की error आपने careful रहना, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस माइनस अगर गलत हुआ तो आपका सारा calculation जो है वो गलत होती चली जाएगी. So this is the simple way. Apparent correction निकालनी कैसे है, apparent trim divided by LBM into जितना हमारा draft mark है. Forward correction निकाल रहा हूँ, how much the forward draft is, how many meters, it will be given in the question. The forward draft marks are 2 meter, 3 meter aft or forward of the perpendicular. So हमने जितने मीटर है वहां पे लगा देना and correction हम sketch से निकाल लेंगे. Otherwise में sketch दिया ऑर्डर या फिर हमें ड्रॉ करना है. Yeah, it will be given that your draft marks are how many meters of the perpendicular, whether forward of the perpendicular or aft of the perpendicular, that will be given. सर मतलब ड्राफ्ट मार्क तो अच्छा मतलब आगे से पीछे बोलेगा और पीछे से इतना डिस्टेंस दे देगा. तो इसमें डाउन बाय हेड भी दे तो डायग्राम से पता चल ही जाएगा हमें. करेक्ट. अगर डाउन बाय हेड भी है तब भी हमें पता है कि यार मेरे जो ड्राफ्ट मार्क्स हैं वो तो परपेंडिकुलर से पीछे ही, isn't it? So यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है, मेरे को ड्राफ्ट परपेंडिकुलर्स पे कैलकुलेट करना है. अब आई एम ऑब्जर्विंग, आई एम रीडिंग द ड्राफ्ट्स एट दिस डॉटेड लाइन एट द ड्राफ्ट मार्क्स, जो कि मेरे को विजुअल है, isn't it? द ड्राफ्ट मार्क्स जो शिप साइड पे पेंटेड है, मैं तो ड्राफ्ट वहां देख रहा हूँ, बट दीज ड्राफ्ट मार्क्स आर नॉट एट द परपेंडिकुलर. तो मेरे को ड्राफ्ट निकालना है परपेंडिकुलर पे. उसके लिए करेक्शन मैंने देख ली है कि करेक्शन तो सिंपल है, ट्रिम अपॉन एलबीएम इनटू जितना ये जितने मीटर ये ऑफ है. अब प्लस और माइनस आपको यहाँ से दिख जाएगा कि यहाँ पे मेरे को ड्राफ्ट पता है एंड आई हैव टू कम टू परपेंडिकुलर. तो नेचुरली स्टर्न ट्रिम में यहाँ ड्राफ्ट कम होगा
यहाँ पे ड्राफ्ट ज़्यादा होगा। ओके, सो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपका ये और क्लियर होता जाएगा प्रैक्टिकली जब हम करेंगे। सो दिस इज द वन So थिंग। then idea is to enter the tables, no? Stability tables या सो फर्स्ट after पॉइंट, calculation. या सो हमें सबसे पहले तो करेक्ट ड्राफ्ट, तो सबसे पहली फर्स्ट करेक्शन तो ये है दैट हाउ डू आई गेट द ड्राफ्ट्स एट परपेंडिकुलर्स। व्हाई आई एम कमिंग टू दिस, बिकॉज जो मेरे स्टेबिलिटी पर्टिकुलर्स हैं उनमें जितनी भी कैलकुलेशन, जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट, MCTC, LCV जो भी दिया वो सारा का सारा अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। और वो जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है दैट इज अगेन द मीन ऑफ योर ड्राफ्ट एट परपेंडिकुलर्स। ओके, बट फॉर कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज परपेंडिकुलर्स पे अगर वो ड्राफ्ट मार्क पेंट कर दें आई मे नॉट बी एबल टू रीड, तो उन्होंने कन्वीनियंस के लिए आपको ड्राफ्ट मार्क्स पेंट किए होते हैं जहाँ पे आप उसको कन्वीनियंटली पढ़ सकते हैं। एंड इसके लिए करेक्शन वेरी सिंपल। अगर आप कहते हैं जी वो नहीं है तो इसकी ये भी है कि साइन ऑफ दीज करेक्शंस कैन बी अप्लाइड एज फॉलोस। इफ द पोजीशन ऑफ ड्राफ्ट मार्क्स फ्रॉम द रेलेवेंट परपेंडिकुलर इज सेम, उसको थोड़ा आप समझ सकते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ ड्राफ्ट मार्क्स फ्रॉम द रेलेवेंट परपेंडिकुलर इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ट्रिम, देन द करेक्शन अप्लाइड टू द ऑब्जर्व्ड ड्राफ्ट इज नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। ठीक है, ये है मेरे हिसाब से स्केच बनाना, दैट इज फास्टर एंड वहाँ पे कोई गलती नहीं है, कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा कि यार नेगेटिव कब है पॉजिटिव, स्केच से सारा कुछ आपको क्लियर दिखता है। ओके, जो अपरेंट ट्रिम है दैट इज द विजुअल ड्राफ्ट का जो ट्रिम है उसे अपरेंट ट्रिम बोलेंगे ना सर? करेक्ट करेक्ट राइट। अब नेक्स्ट आ गया सेकंड, करेक्शन फॉर हल डिफॉर्मेशन। हल डिफॉर्मेशन क्या है? अगेन हॉगिंग सैगिंग। अब हमें जो आपका पर्टिकुलर्स में ड्राफ्ट दिए हैं, जो भी चीज़ दी है वहाँ पे उसने हॉगिंग सैगिंग ही हैज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अब हमें ये भी करेक्ट करना पड़ेगा कि यार इफ द वेसल इज हॉगिंग और सैगिंग तब उसका करेक्ट ड्राफ्ट क्या है। उसका भी सिंपल कैलकुलेशन है, फॉरवर्ड ड्राफ्ट प्लस द आफ्ट ड्राफ्ट प्लस 6 टाइम मिडशिप ड्राफ्ट डिवाइड बाय 8, जिसे हम कह देते हैं मीन ऑफ मीन्स या 3/4 मीन्स या मीन ऑफ मीन्स। एंड बाय डूइंग दिस वी आर टेकिंग केयर ऑफ द हॉगिंग एंड सैगिंग इन द शिप। तो यहाँ से ये जो मीन ऑफ मीन ड्राफ्ट है, अब आपके पास फॉरवर्ड ड्राफ्ट और आफ्ट ड्राफ्ट तो आपने यूज करना है, वो आपने परपेंडिकुलर वाला यूज करना है जो हमने करेक्ट कर लिया। तो सबसे पहली करेक्शन क्या आ गई? करेक्शन ऑफ द ड्राफ्ट्स और ब्रिंगिंग द ड्राफ्ट टू परपेंडिकुलर्स। उसके बाद फॉरवर्ड ड्राफ्ट प्लस आफ्ट ड्राफ्ट प्लस 6 टाइम द मिडशिप ड्राफ्ट डिवाइड बाय 8, इससे आपको मीन ऑफ मीन मिल जाएगा। तो ये आपका सेकेंड स्टेप आ गया, नॉट सो डिफिकल्ट। सर इसमें मिडशिप ड्राफ्ट भी करेक्टेड वाला यूज करेंगे इस मामले में? करेक्ट चाहिए, यहाँ पे अब सब करेक्टेड वाला यूज होगा। फॉरवर्ड में भी जो हमने करेक्शन लगा दी, फॉरवर्ड परपेंडिकुलर पे, आफ्ट परपेंडिकुलर पे एंड मिड पॉइंट पे वो है, वो हम लगा देंगे एंड वी विल कॉल इट मीन ऑफ मीन्स। सो मीन ऑफ मीन इज इक्वल टू दिस 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 दिस। अब आ जाती है आपकी थोड़ी सी थ्योरी जो आपने स्टेबिलिटी में भी पढ़ी होगी, कि जिसे हम ट्रिम करेक्शन कहते हैं। ट्रिम करेक्शन है क्या चीज? अगर तो शिप इवन कील पे, देन तो इसी स्केच में अगर आप देखिए, इफ द शिप इज ऑन इवन कील, अगर ये वाटर लाइन में सीधी ड्रॉ करता हूँ, द वाटर शिप इज लाइक दिस, देन तो देयर इज नो करेक्शन, बिकॉज ड्राफ्ट यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एवरीवेयर ड्राफ्ट विल बी सेम, whether at draft marks or at the perpendicular, because this water line is straight, the ship is on even keel, then तो कुछ correction आपको, you can whatever drafts you are reading, same will be the drafts at perpendicular, isn't it? Because this water line is straight. Trim condition में हमें ये फर्क पड़ता था। अब जो है trim condition में second thing is कि जब आपकी vessel is in a trim condition, a ship trims about the longitudinal center of flotation LCF, ये भी हमें पता है। And what is LCF? It is basically a geometric center of the water plane area. A water plane is the area of the ship shape if it was cut off at the water line. कि just imagine अगर आप जहाज को जहाँ पे उसकी water line है वहाँ से अगर आप जहाज को काटते हो and you are looking from top,
तो वो जो आपको वाटर प्लेन एरिया दिखेगा उसका ज्योमेट्रिक सेंटर जो होता है ना, शेप है तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होगा, डेफिनेटली थोड़ा सा पीछे होगा बिकॉज आफ्ट एरिया इज मोर राउंड अबाउट. तो सेंटर ऑफ फ्लोटेशन इज इन अ सिंपल लैंग्वेज इट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द वाटर प्लेन एरिया एट एनी टाइम. एंड ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है जिसपे आपका वेसल एक्चुअली टिप करता है, शी एक्चुअली ट्रिम्स ऑफ about longitudinal center of flotation. It obviously changes as the draft increases, as the shape becomes more rounded aft while remaining more pointed at the bow. अब जब वो even keel था तब तो ठीक था, it may be at the midpoint. अब जब trim हुआ तो ये जो LCF है ये आपका change हो जाएगा. So LCF is the center of the vessel's water plane area and as such is a function of the shape of vessel on the water line at any given draft, nothing else. Now because the water plane changes shape to get rounder at aft part as the ship gets deeper, the LCF moves aft as displacement increases and forward as the displacement decreases. अब आप इस फिगर में देख लीजिए, अगर तो मेरा शिप इवन कील था, आपके ड्राफ्ट सारी जगह सेम है, मिड पॉइंट पे भी है, और अगर मेरा LCF थोड़ा सा पीछे भी है वहां पे भी आपका जो ड्राफ्ट है इट विल बी इक्वल टू द ड्राफ्ट एट मिडशिप. देन नो प्रॉब्लम. फिर तो इसको रीड करना आसान है कि यार जो मिडशिप पे ड्राफ्ट है वही आपका LCF पे ड्राफ्ट होगा. ये ड्राफ्ट हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास ये भी ड्राफ्ट मार्क्स दिए हुए हैं, फॉरवर्ड ड्राफ्ट मार्क्स भी हैं, आफ्ट ड्राफ्ट मार्क्स भी हैं. नो हॉग सैग, फॉरवर्ड एंड आफ्ट का मीन विल बी इक्वल टू द मिडशिप ड्राफ्ट. एंड ये जो ड्राफ्ट है दिस इज द, यही ड्राफ्ट का LCF पे होगा बिकॉज शी इज ऑन इवन कील. कोई कैलकुलेशन किसी चीज की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट वे आई टेक दिस मिड पॉइंट वाला ड्राफ्ट एंड एंटर द टेबल्स, वहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. अब सपोज द वेसल इज इन अ ट्रिम्ड कंडीशन. नाउ इफ द वेसल इज इन अ ट्रिम्ड कंडीशन तब क्या होगा, आपका जो LCF ऑफ कोर्स पीछे शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज वो तो वाटर प्लेन एरिया का सेंटर है. अब ये जो हमने ट्रिम ली है दिस इज वी हैव जस्ट मूव द वेट फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट. सो अगर हमने कुछ ऐड नहीं किया, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया, खाली वेट को शिफ्ट करके ट्रिम किया है, दैट मीन्स वेसल की डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन सेम, बट ड्यू टू द ट्रिम द लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ रोटेशन जिसपे जहाज ने ट्रिम करना है वो शिफ्ट हो जाएगा. अब यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर कि ड्राफ्ट एट दिस LCF विल नॉट बी सेम ड्राफ्ट विच इज एट द मिड पॉइंट. इतना अगर आपने समझ लिया तो वैसे तो आपने पढ़ा भी होगा पहले, बट जस्ट टू रिफ्रेश यू अगेन कि ड्राफ्ट इन अ ट्रिम कंडीशन और ड्राफ्ट एट LCF विल नॉट बी इक्वल टू, अगर तो इवन कील पे था नो ट्रिम फिर तो आपका LCF का ड्राफ्ट वो मिडशिप वाला ड्राफ्ट सेम आ जाता है, फिर तो ये सेम लाइन में है. अब जो है नाउ शी इज डीपर मोर डीपर आफ्ट, पीछे ड्राफ्ट ज्यादा है एंड आगे ड्राफ्ट आपका कम है. अब आपका जो ड्राफ्ट एट LCF विल बी डिफरेंट. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस ड्राफ्ट एट LCF. देखो यहाँ पे तो ड्राफ्ट मार्क दिए नहीं, ड्राफ्ट मार्क तो यहीं पे दिए, LCF मेरा पीछे शिफ्ट हो गया. नाउ टू कैलकुलेट द ड्राफ्ट एट LCF, आपने ये देखा ये छोटी रेड ट्रायंगल बन रही है, तो ये करेक्शन हमें लगानी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं लेयर करेक्शन या फर्स्ट ट्रिम करेक्शन. कि एक्चुअल जो मिडशिप पे LCF पे जो ड्राफ्ट है, अगर मैं ये लाइन पैरेलल टू अपने शिप की बॉटम से ड्रॉ करता हूँ तो ये ड्राफ्ट यहाँ पे आ रहा है, वेयर एज मिडशिप में जो मैं ड्राफ्ट रीड कर रहा हूँ वो आपका ये है. टीए हो जाएगी ना सर ट्रिम आफ्ट. हाँ जी, टीए कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना सर, टीए ट्रिम आफ्ट. Yeah, it is very simple. So this method is आपको two triangles दिख रही हैं red and green, isn't it? So मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ये वाली करेक्शन निकालनी है जिसे मैं लेयर करेक्शन कह रहा हूँ. ये एरो जो दिखाया जिसमें मेरा कर्सर है. अब सिंपल मैथमेटिक्स से है कि both these triangles are similar triangles. ये रेड वाली and this green. So their angles and sides are in proportion to each other. अब सिमिलर ट्राइंगल का अगर हम मेथड लगाते हैं, अगर मेरे को ये वाली करेक्शन निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालना है, सो व्हाट वी कॉल दिस लेयर करेक्शन, हमने इसको नाम दिया. सो दिस लेयर करेक्शन डिवाइड बाय ये वाली इसकी आर्म ग्रीन ट्रायंगल की, ये क्या है, दिस इज ट्रिम.
difference between your forward and aft draft, isn't it? So this over this is equal to LCA, ये वाला डिस्टेंस, ये जो एरो है, this side of this triangle divided by ये वाली साइड क्या है, LBP. So similar triangle का मेथड इज वेरी सिंपल कि इसे मैंने लेयर करेक्शन का लेयर करेक्शन डिवाइड बाय ट्रिम इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ LCF फ्रॉम मिडशिप, ये लेंथ डिवाइड बाय ये वाली आर्म ऑफ द ट्राइंगल. अब हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये तो हमने देख लिया. नाउ दीज आर द सिमिलर ट्राइंगल्स. यही मैंने यहाँ पे लिखा लेयर करेक्शन मींस ये वाली करेक्शन ओवर ट्रिम, ये वाली इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये वाली साइड ऑफ द ट्राइंगल, it is in proportion to this side of the bigger triangle. So distance of LCF from LCB divided by LBP. अब मेरे को ये चाहिए करेक्शन, मैं ट्रिम को ऊपर ले जाता हूँ और द लेयर करेक्शन इज इक्वल टू ये ट्रिम मैं ऊपर ले गया, ट्रिम इनटू डिस्टेंस ऑफ LCF फ्रॉम द मिड पॉइंट मिडशिप डिवाइड बाय LBP. आई होप क्लियर, वेरी सिंपल. क्या अब ट्रिम तो मेरे को पता है, डिस्टेंस ऑफ LCF फ्रॉम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम. नाउ ये हर बुक में स्टेबल LBP दिया हुआ है ना सर, LCF निकल जाएगा वहां से. कैसे? मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए कि यार ये LCF जो है यहाँ से मिड पॉइंट से कितनी दूर है. मतलब वो मिड पॉइंट हाफ आ गया सर. करेक्ट. अच्छा वो HF होना चाहिए उसके लिए. HF भी तो पता होना चाहिए कितनी दूर है कितनी दूर नहीं है. LBP है तो फिर उस ट्रायंगल से ये वाले ट्रायंगल का निकाल लेंगे सर. सिंपल बच्चे सिंपल. ज्यादा हाई टेक सोचोगे फिर कंफ्यूजन. एक सिंपल. आई होप ये अंडरस्टूड आपने. ये फॉर्मूला इज सिंपल कि सिमिलर ट्रायंगल थी, मेरे को ये करेक्शन निकालनी है बिकॉज मिडशिप ड्राफ्ट को मैं ये करेक्शन लगाता हूँ तो मेरे पास LCF का ड्राफ्ट आ जाएगा. मेरे को ये करेक्शन चाहिए छोटी वाली, वो मैंने निकाली सिमिलर ट्रायंगल से. अब ये डिस्टेंस निकालना है LCF. नॉर्मली इन योर स्टेबिलिटी बुकलेट्स द LCF का जो डिस्टेंस है इट इज गिवन फ्रॉम द आफ्ट परपेंडिकुलर. किसी भी ड्राफ्ट पे 5 मीटर 6 मीटर 8 मीटर जो भी ड्राफ्ट है, यू सी द ड्राफ्ट एंड यू सी द LCF इज 60 मीटर्स फॉरवर्ड ऑफ द आफ्ट परपेंडिकुलर. अब मेरे को ये डिस्टेंस पता है आफ्ट परपेंडिकुलर से, ये LCF जो है एज द ड्राफ्ट चेंजेस वो LCF कितने मीटर आगे पीछे जाएगा, बट दैट इज ऑन इवन कील कंडीशन. बट एनीवे, सो आई नो द डिस्टेंस ऑफ LCF फ्रॉम द परपेंडिकुलर आफ्ट परपेंडिकुलर एंड ये डिस्टेंस मेरे को पता है. दिस इज LBP बाय 2. मिड पॉइंट कितना है, LBP डिवाइड बाय 2 इज द मिड पॉइंट. सो LBP माइनस 2 में यहाँ तक पहुँच गया. इसमें से मैंने ये डिस्टेंस निकाल दिया विच इज नोन टू मी. तो आपके पास ये जो डबल एरो वाला डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस आ गया, यही मेरे को चाहिए. सो LBP बाय 2 माइनस LCF which I can take it from the stability particulars as per the mean draft. तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा. This is what I need, distance of LCF from midship. Simple. So layer correction basically या first trim correction is equal to trim into distance of LCF from midship divided by LBP. अब इसको मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ यार, मेरे को ठीक तरह से याद रहे. ट्रिम करेक्शन इज इक्वल टू ट्रिम इंटू LBP बाय 2 माइनस LCF डिवाइड बाय LBP. आई होप क्लियर टू एवरीवन. यस सर. चलो अब ये करेक्शन हमने अपने मीन ऑफ मीन ड्राफ्ट में, ये जो करेक्शन आपके पास आएगी, अब यहाँ पे हमने ट्रिम जो है आपकी जो भी ट्रिम थी उसको हमने यूज़ किया. LBP हमें पता थी, LCF हमने पर्टिकुलर से ले लिया एंड LBP से डिवाइड किया. तो ये ट्रिम करेक्शन जो है मीटर्स में आ जाएगी. इसको मैं प्लस माइनस, अब ये प्लस होगी या माइनस होगी, अब करेक्शन तो निकाल लिए, वेदर इट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड. इसके लिए मैं आपको एक सिंपल मेथड दिखाता हूँ. दिस इज योर शिप, दिस इज द मिड पॉइंट मिडशिप. अगर आपका LCF जो है इट इज टुवर्ड्स द ट्रिम एंड, ट्रिम भी इधर है
और ये LCF भी ट्रिम की तरफ है, मीन मिड पॉइंट से पीछे की तरफ टुवर्ड्स द ट्रिम एंड है। सो आपकी जो करेक्शन है इट विल बी एडेड इनटू द मीन ऑफ मीन ड्राफ्ट। अगर ये LCF आगे चला जाता, एग्जाम्पल योर मिडशिप इज से 71 मीटर्स, LBP बाय 2 मैंने किया तो एग्जाम्पल मेरे पास मिड पॉइंट 71 आ जाता है। अब मेरा LCF जो मैंने अपने पर्टिकुलर से निकाला वो 72 मीटर्स फ्रॉम द आफ्टर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स यहाँ से 72 मीटर्स, तो ये LCF आगे चला गया, फिर ये करेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। अगर LCF जो है 68 आता है फ्रॉम दिस आफ्टर परपेंडिकुलर से, द LCF की वैल्यू मेरे को टेबल से मिलती है फ्रॉम द स्टेबिलिटी बुकलेट से, द LCF इज 68, ये मेरा बिट पॉइंट 71, दैट मीन्स LCF इज टुवर्ड्स द ट्रिम एंड करेक्शन पॉजिटिव। ये मैंने यहाँ पे लिखा है साइन पॉजिटिव इफ द ट्रिम एंड LCF इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम मिडशिप, करेक्शन टू बी एडेड, एंड इफ द ट्रिम एंड LCF इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मिडशिप तो नेगेटिव। तो दोनों तरीके आपको कि सिंपली मैं यू नो। एंड तीसरा तरीका जब हम करेंगे, अब आप इसी फॉर्मूले को ले लीजिए, आई थिंक ये आपने वेल अंडरस्टूड। LBP बाय 2, सपोज मैंने कहा था 71 मीटर्स एग्जाम्पल, माइनस LCF, अगर LCF मेरा 69 है, 72 माइनस 69 3 मीटर आया, बट इट इज पॉजिटिव हो गया सर, पॉजिटिव हो गया। अभी अगर LCF था ये 72 हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा 71 और ये 72 मीन्स माइनस हो गया, तो करेक्शन माइनस। मैं तो इस देसी तरीके में ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि हमने तो मैथमेटिक्स पढ़ा ही पाठशाला में हो, तो यहाँ से भी आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, बट समझने के लिए थ्योरेटिकली यू शुड नो कि एक्चुअली शिप में हो क्या रहा है, LCF कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, एंड दिस इज योर बेसिकली फर्स्ट ट्रिम करेक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर। चलें आगे। यस सर। सर इसको लिखना भी है सर कि आप नोट्स वो डोंट वरी, अभी खाली समझ लीजिए, आपको सब कुछ आपके सामने इसको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में सारी करेक्शन को आपको दिखाऊंगा, फिर आप उसकी चाहे फोटो खींच लेना चाहे लिख लेना, अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। ओके सर एक डाउट है। हाँ जी सर, मिड वाले ड्राफ्ट्स है और मिडशिप ड्राफ्ट मार्क्स है, हमेशा मार्क्स फॉरवर्ड होंगे मिडशिप ड्राफ्ट से? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा द मिडशिप ड्राफ्ट मार्क्स आर सो मेनी मीटर फॉरवर्ड ऑफ द मिडशिप और सो मेनी मीटर्स आफ्ट ऑफ द मिडशिप, वो क्वेश्चन में। ठीक है, चलो यहाँ तक सब क्लियर। सो ये थ्योरी भी आपने समझ ली, अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब ये फास्ट हो जाएगा, बट यू हैव अंडरस्टूड कि हम कर क्या रहे हैं। अब एक और करेक्शन आ जाती है जिसे हम कहते हैं सेकेंड ट्रिम करेक्शन। सेकेंड ट्रिम करेक्शन का था, वो कहता है इट इज हो क्या रहा है कि जब शिप एक्चुअली ट्रिम करता है तो आपका ज्योमेट्रिक सेंटर जो है वाटर प्लेन एरिया का चेंज हो जाता है, तो जैसे ही चेंज होगा तो LCF एक्चुअली देयर इज अ मूवमेंट ऑफ LCF, LCF आल्सो शिफ्ट होता है एज द ड्राफ्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब ये मिस्टर नोमेटो जी जापानीज आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने भी देखा कि भाई एक्चुअली देयर इज अ सेकेंड मूवमेंट ऑफ द LCF, एंड इसलिए उन्होंने एक और करेक्शन लगा दी, इफ द शिप इज ट्रिम द वाटर लाइन मस्ट हैव चेंज्ड कॉजिंग अ सेकेंड मूवमेंट ऑफ LCF एंड दिस करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये करेक्शन हम कैसे निकालनी, ट्रिम स्क्वायर इनटू MCTC1 MCTC2 इंटू 50 डिवाइड बाई LBP। अभी MCTC1 और MCTC2 क्या है, ये हमने क्या निकालना है, एक्चुअली जो हमारा ड्राफ्ट आएगा मीन ऑफ मीन जो ड्राफ्ट आता है उसका 50 सेंटीमीटर्स प्लस एंड 50 सेंटीमीटर्स उसमें से माइनस, वो जो ड्राफ्ट आएंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये 2 MCTC निकालने हैं पर्टिकुलर्स से। तो इट इज़ बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ MCTC। थ्योरी हमें इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इसके, बिकॉज ऑफ कोर्स नेवल आर्किटेक्ट्स हैं वो करते रहेंगे, हमने ये देखना हमने ये करेक्शन कैसे निकालनी है। दिस इज बेसिकली दिस करेक्शन इज फॉर द स्मॉल ट्रिम्स।
एंड ये करेक्शन ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 टन तक जाती है. सो दे से इट इज़ क्वाइट ओके फॉर द स्मॉलर एंगल्स ऑफ द ट्रिम, स्मॉलर वैल्यूज ऑफ द ट्रिम. निकालना भी आसान है. ट्रिम हमारे पास है MCTC1 एंड MCTC2. वी विल कैलकुलेट. सपोज मेरा मीन ऑफ मीन ड्राफ्ट 8.5 मीटर आता है. सो 8.5 प्लस 50 सेंटीमीटर दैट इज 9 मीटर एंड उसका MCTC कॉरस्पॉन्डिंग MCTC फ्रॉम द पर्टिकुलर्स एंड 8.5 मीन ऑफ मीन था, उसमें से माइनस 50 सेंटीमीटर दैट मीन्स 8 मीटर. सो 8 मीटर और 9 मीटर दोनों का MCTC नोट करना है. And then this correction will straight away come in tons and ये correction will be always positive. Nothing to worry about कि प्लस माइनस इसमें नहीं है. फर्स्ट ट्रिम करेक्शन में वो माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी. So इसकी डिटेल है कि yes, this trim correction sometimes called Nomato correction is intended to allow for movement of LCF with change of trim. It was deduced by Mr. Nomato after observation of a bulk carrier that he was involved in building. Theory on which it is based only holds true for small changes of trim, so it is not strictly true for large trims. However, with so much in draft surveys, it is better than nothing. The correction is small for small trims, rarely exceeds 30 ton for large vessels and often ignored, but completeness it should be always used. So exam में हम इसे use करते हैं. And इसका एक और भी है कि the recorded data for LCF, just the easy language, the recorded data for LCF is for even keel condition, जो हमारी बुक्स में है, स्टेबिलिटी बुकलेट्स में है. But as the ship trims, the water plane will change, जैसा मैंने आपको बताया. This change of shape involves the water plane increasing in size aft and decreasing forward. And in this situation, the position of LCF will change by moving further aft to maintain its geometric position of center. उसके लिए ये correction लगाई जाती है. So the new position is not tabulated in the normal hydrostatic tables and a second trim correction is required to compensate for this. Again, MCTC1 is the rate of change of MCTC per meter of draft. It is a difference between MCTC for 50 centimeters above and below the mean draft. ठीक है, तो ये आपकी होगी. अब नेक्स्ट आ गई आपकी डेंसिटी करेक्शन. सर ये जो सेकंड ट्रिम करेक्शन है ये अप्लाई किस में करेंगे? टन्स में या जस्ट? इट इज इन टन्स. इट इज टू बी एडेड टू द डिस्प्लेसमेंट. फाइनली जब हमने करेक्टेड ड्राफ्ट निकाली, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे टू द ट्रू मीन ड्राफ्ट्स. ट्रू मीन ड्राफ्ट हमारा है मीन ऑफ मीन हमने जो निकाला फॉरवर्ड ड्राफ्ट प्लस आफ्ट प्लस 6 टाइम्स मिडशिप डिवाइड बाय 8 दैट इज मीन ऑफ मीन. उसको मैं फर्स्ट ट्रिम करेक्शन लगा रहा हूँ विच विल बी इन मीटर्स प्लस माइनस 0.002 और 0.03 और जितनी भी करेक्शन आएगी उसको हम प्लस माइनस करेंगे. देन यू गेट द ट्रू मीन ड्राफ्ट. वो जो ट्रू मीन ड्राफ्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली मैं स्टेबिलिटी बुकलेट से डिस्प्लेसमेंट रीड करूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट. उस डिस्प्लेसमेंट में ये जितने टर्न्स आते हैं ये आपकी करेक्शंस अब ऐड होती जाएंगी. ओके सर, अंडरस्टूड. तो ये तो थी सेकंड ट्रिम करेक्शन. अब आ गया आपकी डेंसिटी करेक्शन. अब डेंसिटी करेक्शन भी है कि यस आपके जो पर्टिकुलर्स हैं उसमें जो डेटा दिया होता है दैट इज फॉर सॉल्ट वाटर. नाउ द शिप मे बी फ्लोटिंग इन डिफरेंट वाटर. तो इसके लिए अब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है फॉर दैट पर्टिकुलर ड्राफ्ट और दैट पर्टिकुलर डेंसिटी वो चेंज हो जाएगी. अब उसका भी सिंपल फॉर्मूला है that displacement, true displacement is displacement in salt water into density of dock water divided by आपकी 1.025. सो जो आपकी सॉल्ट डिस्प्लेसमेंट आती है, सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट जो हमने पर्टिकुलर से निकाली है, मल्टीप्लाई बाय द सपोज शी इज फ्लोटिंग इन 1010, so 20,000 into 1010 1.010 divided by 1.025 will give you the displacement in that particular डेंसिटी. तो ये करेक्शन भी इजी है. डिस्प्लेसमेंट इनटू डॉक वाटर डेंसिटी अपॉन 1025 इन टन्स. ये आपकी रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट उस डॉक वाटर में आ जाएगी. क्यों हम क्यों इसको कर रहे हैं कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर्स में दी है दैट डिस्प्लेसमेंट इज फॉर सॉल्ट वाटर. इट इज कैलकुलेटेड फॉर सॉल्ट वाटर. सर ये 1.025 होगा ना सर डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर? या अगर 1.0 आएगा ना?
हाँ, ऊपर भी आपने फिर 1.010 ही लेना है। हाँ सर वही। तो ये दोनों है कि डॉक वाटर डेंसिटी, अगर आप यहाँ 1010 लेते हो 1025, यहाँ मैं 1.010 लेता हूँ तो यहाँ पे भी 1.025। आपकी लास्ट करेक्शन आपकी आ गई हील करेक्शन की। अब आप जब ड्राफ्ट सर्वे कहते हो सकता है शिप में भी लिस्टेड टू वन साइड, चाहे वो थोड़ा सा ये हाफ a डिग्री हो। सो नॉर्मली आपने देखा होगा वी टेक द 6 साइड ड्राफ्ट्स। सो द आइडिया ऑफ टेकिंग द 6 साइड ड्राफ्ट इज दैट देयर इज नो लिस्ट इन द शिप। Otherwise, if where substantial heel exists, a correction should be applied. The effect of the heel or list is to increase the water plane area, thus lift the ship out of water. तब भी हमारी करेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट जो है ठीक नहीं आएगी, तो उसकी करेक्शन जो है वो भी सिंपल है। हील करेक्शन इज अगेन 6 इंटू D1, ये आपके ड्राफ्ट्स हैं, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड मिडशिप ड्राफ्ट्स। सो D1 माइनस D2, दिस इज बेसिकली द डिफरेंस इन द मिडशिप ड्राफ्ट, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड जो भी आपके ड्राफ्ट है। हो सकता है एक तरफ 8 मीटर और दूसरी तरफ 8.3 मीटर। सो 8.3 माइनस 8 आपका 0.3, सो इसको मीटर्स में ले लीजिए इनटू टीपीसी, इन्हीं ड्राफ्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग टीपीसी फ्रॉम द पर्टिकुलर्स। जो मिडशिप ड्राफ्ट है ये आपके ऑब्जर्व्ड वाले ड्राफ्ट हैं, करेक्टेड वाले नहीं है। जो अपेरेंट ऑब्जर्व ड्राफ्ट से D1, D2 are the observed midship, port and starboard drafts, and TPC1, TPC2 are the those for respective drafts. Sign always positive. ये भी आपकी टन्स में आएगी। तो जितनी ये करेक्शन आएगी 1 टन 0.5 टन वो भी एडेड टू द डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली आपका अब करेक्टेड डिस्प्लेसमेंट जो है it becomes, now the true displacement of the vessel is known. It only requires subtraction of all the known weights on board and subtraction of the ship's light displacement. What remains is either the vessel's constant if in empty condition or the cargo weight if in loaded condition. तो ये तो आपकी बन गई कि this is what basically आपका जो total correct displacement हमने निकाल ली। अब आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो मैंने लिखा है कांस्टेंट, नो व्हाट इज कांस्टेंट, एनी आइडिया? कांस्टेंट सर वही जो बालास्ट का जो मड वर्ड जो रह जाते हैं तो उसको ही मानते हैं। और भी मतलब और भी चीजें होती है, बालास्ट का हो गया सर वही सर अननोन वेट हो गया सर जो वेसल पे है, लाइट शिप और वो डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब हटा के। सर अब आपको पता लग जाएगा कि आप जो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, और वेरी सिंपल एग्जांपल आपने देखा होगा, लॉट ऑफ टाइम योर लोडिकेटर ड्राफ्ट्स एंड विजुअल ड्राफ्ट्स डू नॉट मैच। यस सर, इजंट इट? सो अब आप सेकंड ऑफिसर हो तो थोड़ा बहुत चीफ ऑफिसर के साथ काम किया होगा आपने। सो लॉट ऑफ टाइम इस ईयर लोडिकेटर का ड्राफ्टर हो, इनकमिंग चीफ ऑफिसर आउटगोइंग चीफ ऑफिसर एक दूसरे को बोलते हैं फॉरवर्ड ड्राफ्ट में पाइप 5 सेंटीमीटर ऐड करना, आफ्ट वाले में 5 सेंटीमीटर माइनस करना, फिर ठीक आ जाएगा। बट उसका रीजन क्या है? ये ड्राफ्ट क्यों नहीं मैच कर रहे? जब मैंने फिगर सारी डाली है, ड्राफ्ट शुड मैच। सर वही कांस्टेंट या तो पीछे होगा या आगे होगा ज्यादा, तो उसके हिसाब से ट्रिम चेंज हो रहा, मतलब एक तरीके से ड्राफ्ट चेंज हो रहे हैं तो करेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए कि एज अ चीफ ऑफिसर, अब आप चीफ ऑफिसर की चेयर पे बैठोगे तो सबसे पहला तो ये आ जाता है कि आपको तो कंपनी पूछेगी या चार्टर पूछता भी हो कि हाउ मच कार्गो यू कैन लोड। आपने डिस्प्लेसमेंट निकाली कि समर लोड लाइन, ओके वी आर गोइंग थ्रू समर, उसका डेड वेट उठाया, बैलास्ट, फ्यूल, फ्रेश वाटर, स्टोर्स, प्रोविजन सब माइनस किए और आपने कह दिया कि ओके आई कैन लोड 65,000 टन। अब जब आप 65,000 टन लोड करने आए, 60,000 तक तो ठीक था, एंड 64,500 टन आपने लोड किया तो आपका जहाज लोड लाइन मार्क पे आ गया। अब वो 200, 300, 500 टन कार्गो ट्रक्स लेके जेटी पे खड़े हैं, आपका जहाज जो है लोड लाइन पे आ गया। आप क्या करोगे? सर डेंसिटी बोल देंगे बदल गई पानी की। इमेजिन जिस बंदे ने कार्गो कस्टम के थ्रू अंदर जेटी पे लेके आया है, वो कार्गो वापस नहीं जा सकता, वापस जाएगा तो उसके लिए दुनिया भर का झमेला।
एंड देन यू स्टार्ट स्क्रैचिंग योर हेड कि यार ये क्या हो गया, कि मैंने तो कैलकुलेशन की थी 65,000 आना चाहिए, ये तो पहले ही लोड लाइन पे आ गया जहाज। इसलिए बच्चे सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस ड्राफ्ट सर्वे इज दैट वेन एवर यू गो ऑन द शिप, कोई भी शिप है, अब ये बल्क कैरियर निकाल दीजिए, यार हर शिप के लिए मेरे को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अननोन वेट। ये अननोन वेट क्या है? इट्स सिंपल, यू आर टेकिंग बैलास्ट इनटू द टैंक्स। आप साउंडिंग लेते हो, कैलिब्रेशन टेबल से आप उसके वाटर का वॉल्यूम निकाल लेते हो, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके दिस इज द वेट। अरे उसके नीचे जो मड है उसको कौन एस्टिमेट कर रहा है? उसका वेट तो आपके पास आया ही नहीं। सेम थिंग इज फ्यूल टैंक्स। फ्यूल टैंक में जो स्लज है उसकी तो कैलकुलेशन में आया ही नहीं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द शिप हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ रिपेयर्स। कहीं स्टील ऐड हुआ है, कहीं स्टील काटा गया। सो मेनी टाइम यू हैव लाइनर्स, स्पेयर लाइनर्स ऑन बोर्ड। पुराने इंजनों के पिस्टन आपने रखे हुए हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइंग हियर एंड देयर। उनका वेट तो आपने लिया ही नहीं, अकाउंट ही नहीं किया, कहीं पे भी नहीं अकाउंट हुआ। आपने तो सिर्फ पकड़ा डेड वेट माइनस बैलास्ट, फ्रेश वाटर, फ्यूल, लूब ऑयल, स्टोर्स, प्रोविजंस करके आप आगे कीजिए, दिस इज द कार्गो आई कैन लोड। अब उस फिगर्स को, दिस इज व्हाट वी कॉल द अननोन, उसको कैलकुलेट करने के लिए दिस इज अनदर मेथड, ड्राफ्ट सर्वे। अब आपने ये सारी डिस्प्लेसमेंट निकाली जो आपके पास नॉन वेट्स थे, इफ शी इज इन फुल बैलास्ट कंडीशन, वेरी गुड। आपने सारे टैंक्स टॉप अप किए हुए हैं, बैलास्ट कैलकुलेट करना भी इजी है। बैलास्ट की डेंसिटी भी आपको करेक्ट डेंसिटी पता है, विथ सी में आपने बैलास्ट लिया हुआ है। फ्यूल की आपके पास करेक्ट फिगर्स, बड़ा साहब से कि सर करेक्ट फिगर्स मेरे को कंपनी को नहीं भेजनी, मेरे को कैलकुलेशन के लिए चाहिए, so that he adds up whatever he has kept up his sleeve। अब सारी करेक्ट फिगर्स आपने उसमें कर दी। अब आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है दैट बिकम्स द कांस्टेंट, दैट इज अननोन वेट की 200, 300, 400। जैसे जैसे जहाज पुराना होगा, यू आर टेकिंग बैलास्ट इन रिवर्स, आपके टैंक्स विल बी फुल ऑफ मड। अब आप उसको अपने लोडिकेटर ड्राफ्ट में अगर एडजस्ट करते हो, यहाँ यार 200 टन फॉरवर्ड या 150 टन पीछे में, एंड आपके ड्राफ्ट मैच होते हैं, सो देन यू नो कि भाई जहाज का इतना कांस्टेंट है, आप उसको भी डेड वेट में से माइनस करोगे। कंटेनर शिप्स में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। 6 months back I was in touch with a guy on the ship, 10 कंटेनर 15 कंटेनर जेटी पे पड़े हैं, शी इज कम टू द लोड लाइन। प्लानर पूछ रहा है क्यों भी क्या हो गया? अब बैलास्ट जो है उसको क्या थोड़ा थोड़ा बैलास्ट है उसको स्ट्रिप करो। अब जहाज वैसे ही इवन कील पे, कहाँ से स्ट्रिप करोगे उसको? कांस्टेंट लगा ही नहीं। सर कांस्टेंट तो सर हर जहाज का फिक्स रहता है ना सर, उसको चेंज तो नहीं करते ना। इट कीप्स ऑन चेंजिंग बच्चों। नो वो सर फिक्स कैसे हो सकता है सर? वो तो इट इज चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। आप ड्राई डॉक गए, आपने टैंक साफ कर दिए, सब मड वर्ड निकाल दी, सब कुछ कर दिया, चेंज हो जाएगा। 2 पिस्टन थे वो आपने लैंड कर दिए पुराने वाले, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। इतना अगर आपने समझ लिया, नो प्रॉब्लम। अब आपके पास नाउ यू कैन सिट ऑन द, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? आपने कितना कांस्टेंट है आएगी देखो ना, अभी हमने निकाली है। अब हमने करेक्टेड डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, हमने सारी करेक्शन लगाई। पहले हमने ड्राफ्ट को करेक्ट किया, फिर हमने हॉग सैक डिफ्लेक्शन को करेक्ट किया, फिर फर्स्ट ट्रिम करेक्शन लगाई, सेकंड ट्रिम करेक्शन लगाई, एंड जिस डेंसिटी पे हम खड़े हैं डेंसिटी करेक्शन लगाई, एंड इफ द शिप हैज़ गॉट अ लिस्ट, वो करेक्शन भी हमने लगा दी। फिर हम करेक्टेड डिस्प्लेसमेंट में आ गए। अब हमने जो हमारे पास जो करेक्टेड ड्राफ्ट आया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने स्टेबिलिटी बुकलेट से डिस्प्लेसमेंट भी निकाली, उसको डेंसिटी करेक्शन लगा के। अब मेरे पास जो नोन फिगर्स थे मैंने सब सब्ट्रैक्ट कर दिए। अगर तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, बराबर है, देन देयर इज नो कांस्टेंट इज 0, बट ये कभी होगा ही नहीं। अब आपका जहाज खाली है, देयर इज नो कार्गो,
तो आपने नॉन वेट्स, फ्यूल, बैलास्ट जो भी था सारी फिगर लगा के उस डिस्प्लेसमेंट में से माइनस किया. What remains is either the vessel's constant in an empty condition or the cargo weight if loaded condition. सर स्टोर्स भी उसी में इंक्लूड हो जाता है ना सर? Yeah, that is yes, वो हम लगा देते हैं. वो आपने सारे ऐड किए होते हैं. 15 टन, 20 टन, 10 टन एवरेज होता है. ऐसी स्टोर में क्या फर्क पड़ेगा? 1, 2, 3 टन का ही फर्क पड़ेगा, 4 टन का फर्क पड़ जाएगा. इतने स्टोर्स कौन से हैं? वो हमें लगा रहे हैं, फिगर तो हम लगा ही रहे हैं, रफली आपको पता है. तो ये जो ड्राफ्ट सर्वे, अब आपके पास बेसिकली ड्राफ्ट सर्वे 2 बार किया जाता है. एक तो जब शिप आपका अराइव करेगा लोड पोर्ट पे, सर्वेयर विल कम, ही विल कैरी आउट द ड्राफ्ट सर्वे. उससे वो क्या निकालेगा? कांस्टेंट. कार्गो तो है ही नहीं, जीरो कार्गो. तो व्हाट रिमेन्स, वो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेगा. अब जब आपने लोडिंग कर ली है, वो उस कांस्टेंट को वहां पे लगा देगा बीच में कि भाई 200 टन, 250 टन जो भी कांस्टेंट था उसकी वैल्यू लगा दी. एंड देन यू कम टू नो, अब जब सब कुछ मैंने सब्ट्रैक्ट किया, देन यू कम टू नो कि दिस इज द अमाउंट ऑफ कार्गो लोडेड. तो ये 2 बार सर्वे होता है, एक व्हेन द शिप कम्स एंड सेकंड व्हेन द आफ्टर द लोडिंग. सेम थिंग डिस्पोर्ट पे, जब शिप अराइव करता है फुली लोडेड कंडीशन पे, वो तब उसकी फिगर निकाल लेगा. एंड व्हेन आफ्टर डिस्चार्जिंग, फिर उसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेगा. देन ही विल टेल यू कि दिस इज द अमाउंट ऑफ कार्गो डिस्चार्ज. Excuse me, sir. I wanted to ask something. If the vessel is loaded and you find the corrected displacement and you subtract the light displacement of the ship, so you will get cargo plus constant, right? Yes. अगर आपने कांस्टेंट नहीं अप्लाई किया तब आपको करेक्ट फिगर नहीं है कार्गो की, उसमें कांस्टेंट भी होती है. Okay. नॉर्मली क्या होता है कि यस वी नो द कांस्टेंट की भी 200-250 टन कांस्टेंट है. सर्वेयर जो है तो पहले ही कैलकुलेट करेंगे. जैसे आपका शिप खाली आया, खाली में तो मींस देयर इज नो कार्गो. Yes. या फिर इसका एक फार्मूला भी है, दैट इज वेरी एम्पिरिकल. So we will determine the constant at the initial draft, sir. Yes. तो इसका एक फार्मूला भी है, 0.5 + 0.05 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स. वो भी हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे. तो यहाँ तक आपके पास नाउ एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया कि यार ये ड्राफ्ट सर्वे है क्या, हम करते क्यों हैं, और उसका प्रोसीजर, ये अपने स्टेप्स देख लिए. तो डोंट वेरी नथिंग. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक तो थोड़ी सी हम प्रिकॉशंस पढ़ेंगे कि अब जब ड्राफ्ट सर्वे करना है तो क्या क्या प्रिकॉशन, बिकॉज एक्यूरेसी उन प्रिकॉशंस पे है. तो वो भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है या बंदे पूछ भी लेते हैं. एनी एग्जामिनर कैन आस्क यू कि ओके यू शुड नो कि यार ये जो ड्राफ्ट सर्वे है इसके ऊपर कार्गो कैलकुलेशन डिपेंडेंट है, एंड कार्गो इज मनी. 5, 10, 15 टन इज लॉट ऑफ मनी. तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो भी हम देखते हैं प्रिकॉशंस में आफ्टर अ कप ऑफ टी. ठीक है, चाय पी लें. जी सर. Yes, sir. चलो, please have a cup of tea. 10:15 be back. So then we'll continue with this. जी सर. Okay.